Hello students, so we had discussed derivatives in last few lectures and today we are going to discuss the reverse process of derivatives that is called as antiderivatives or that is called as integration. Alright, so today we are going to discuss integration. Alright, so first we'll try to understand the physical significance. Just like in derivatives we understood the physical significance that derivative is basically the slope, right? So if we have a graph like this is y and this is x, and the slope of the curve that is given by dy by dx, that is the derivative of y with respect to x. This is the slope of the tangent which is equal to tan theta. So this is what we had discussed about the physical significance of the derivatives. All right, so in this lecture we'll also discuss first the physical significance, and then we will try to remember some formulae of this integration. That's all, right? And then we will start with our first chapter of physics, that is rectilinear motion. Then the physics, right, the first chapter of physics will start. All right, okay. So let us discuss the physical significance of antiderivatives, that is integration. Okay, so let us start the physical significance. Let us consider that we have a function y is equal to f of x. Let me draw it. So I'll just draw it here. I'll erase that because we want to discuss that, right? So erase this. Okay, let us consider that we have a function y is equal to f of x. Okay, इस तरह से एक function है. Okay, so this is y, this is x, this is y is equal to f of x. So this is the graph, right? Every function has a graph, right? The independent variable and the dependent variable. So it's a graph between y versus x, or a graph between dependent variable and independent variable. Okay, and let us consider, now this is the graph and this is the x-axis. Okay, so if we want to find out the area under this curve, let us say this area from x is equal to a to x is equal to b, we want to find out this area. हमें ये area find करना है, area under the curve. So area under the curve का मतलब हो गया कि area between this curve and the x-axis. Okay, so we want to find out area under the curve y is equal to f of x. Okay, so this is what we want to find out. Between x is equal to a and x is equal to b, x is equal to a से x is equal to b, तो ये है lower limit और ये जो है this is upper limit. Okay, so this is what we want to do. Second point is, alright, so we want to find out the area under this curve. Okay, area under the curve y equal to f of x. Okay, and that will take us to integration. Okay, what is integration? So how do we find this area, right? We want to find out this area under the curve. So what we will do is, we will take one element. So let us take one element, small element. So I have taken this small element here. Okay, this element, and let us take the position of this element. Let us take the position of this element, I mean this one, as x, and the position of this point, this is x plus dx. Okay, so what we have done, we have taken the thickness of this as dx. ये जो एलिमेंट है इसका हमने थिकनेस क्या लिया है, dx लिया है. तो यहाँ पे let us consider an element. तो हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि let us consider an element,
at x is equal to x, at x is equal to x of thickness dx। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने x इक्वल टू एक्स पे एक एलिमेंट कंसीडर किया है, एक एलिमेंट कंसीडर किया है जिसका थिकनेस dx है। तो अगर उसका ये वाला एंड x होगा तो वो वाला एंड क्या होगा, x प्लस dx, ठीक है। तो दिस इज व्हाट वी हैव कंसीडर। तो इसका एरिया कितना होगा, तो वो जानने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इसका लेंथ और ब्रेड चाहिए, ठीक है। तो अगर ये x है, जैसे ये x इज इक्वल टू a है, तो ये क्या होगा, तो ये होगा f ऑफ a। अगर ये x इज इक्वल टू b है तो ये क्या होगा, f ऑफ b, ये वाला पॉइंट। वैसे ये अगर x है तो ये क्या होगा, ये होगा f ऑफ x। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का एरिया क्या होगा, तो इस एलिमेंट का एरिया हो जाएगा स्मॉल एरिया इस एलिमेंट का, ठीक है। वो हो जाएगा कि उसका लेंथ क्या है और उसका ब्रेड्थ क्या है, ओके। तो उसका लेंथ हो जाएगा ये वाला पार्ट, ये वाला, और ये वाला पार्ट मतलब f ऑफ x। तो उसका, क्योंकि एलिमेंट जो है, आप देखो एलिमेंट इस तरह का है, तो उसका जो ये लेंथ है, ये लेंथ हम लोग ले लेंगे f ऑफ x, और जो ब्रेड्थ है उसका वो है dx। तो ये हो जाएगा f ऑफ x इंटू dx, ठीक है। अब आपका एक सवाल हो सकता है यहाँ, आपका सवाल ये हो सकता है कि सर इसमें जो है, इसमें आपने इसको लिया है, इसका हाइट लिया f ऑफ x सर, और इसका हाइट भी तो है, ये है f ऑफ x प्लस dx। तो आपने f ऑफ x प्लस dx कर लिया। तो यहाँ पे बात ऐसी है कि जो हमने dx लिया है, जो एलिमेंट लिया है, वो एलिमेंट बहुत छोटा है, राइट। तो यहाँ पे कंसिडरेशन आपको समझना होगा कि जो एलिमेंट है वो बहुत छोटा है, इट इज ऑलमोस्ट जीरो, इट इज नॉट जीरो, इट इज नॉट जीरो, इट इज ऑलमोस्ट जीरो, इट इज टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। तो द एलिमेंट इज टेंडिंग टू जीरो, राइट, ऑलमोस्ट टेंडिंग टू जीरो। तो ये इतना छोटा है, इतना ये इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल, ये मैंने आपको टर्म बताया था पहले भी। इट इज वेरी वेरी स्मॉल, इतना छोटा है कि वी कैन टेक दिस एंड दिस एज सेम, आई मीन f ऑफ x। So that's why we have written this length as f of x and this breadth as dx। तो एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसीडर किया हम लोगों ने, इसको क्या कंसीडर किया है, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसीडर किया है। तो ये हो गया एरिया dA, ठीक है। तो ये इसका एरिया हो गया, ऑलराइट। अब अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का एरिया चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इस तरह के बाकी स्ट्रिप्स लेने होंगे, इस तरह के और भी स्ट्रिप्स कंसीडर करने होंगे, और मुझे उन स्ट्रिप्स को ऐड करना होगा, राइट। मतलब मुझे ऐसे सारे स्ट्रिप्स लेने होंगे और इन सारे स्ट्रिप्स को मुझे ऐड करना होगा, करेक्ट, ऐड करना होगा। तो इसका मतलब मुझे अब इस सबको ऐड करना है, राइट। जो एरिया है इधर dA है और जो f ऑफ x इंटू dx है, इन सबको मुझे ऐड करना है। तो वो ऐड के लिए जो साइन यूज होता है, साइन वो इस तरह से यूज होता है, राइट, समेशन का साइन है, इसी को इंटीग्रेशन कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। तो वो इधर भी आ जाएगा, समेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या देगा हमको, ये हमको देगा एरिया अंडर दिस कर्व फ्रॉम x इज इक्वल टू a द लोअर लिमिट टू x इज इक्वल टू b द अपर लिमिट, राइट। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने एक स्ट्रिप का एरिया निकाला है। जैसे आपसे पूछा जाए कि 10 चॉकलेट का प्राइस कितना है, तो आपको एक चॉकलेट का प्राइस पता है 2, तो वैसे आप 2 + 2 + 2 + 2 + 2 करते जाओगे तो 10 का कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। तो वैसे ही आपको अगर इस स्ट्रिप का पता है कि इसका एरिया 2 है, उसका 3 है, 4 है, 5 है, सबका अगर एरिया ऐड करेंगे हम तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले इस एलिमेंट का एरिया लिखा, तो वो हो गया f ऑफ x इंटू dx, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, क्योंकि हमने उसको एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप कंसीडर किया। अब हमको चाहिए टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कहाँ से कहाँ तक चाहिए, x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक। तो उसके लिए हमने इसको क्या कर दिया,
इंटीग्रेट कर दिया। तो ये है कॉन्सेप्ट इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन जो है वो हमको क्या देता है, वो हमको देता है एरिया अंडर द कर्व, AUC, ठीक है, एरिया अंडर द कर्व देता है। तो ये जो एरिया, ये कितना आएगा, ये एरिया आ गया एफ ऑफ एक्स dx। अब कहां से कहां तक चाहिए, x इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b, ये लोअर लिमिट, ये अपर लिमिट, ठीक है। इसी को हम लोग इंटीग्रेशन कहते हैं, i। तो a को हटा के यहाँ i लिख सकते हो, दिस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन i। समझ में आपको? ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए पहले, राइट, आप पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें, ओके, यहां तक नोट डाउन कर लीजिए आप। अब देखिए, अब आप देखिए, आपको जो डेरिवेटिव्स है, तो डेरिवेटिव्स में सिंबल क्या है, जैसे आपका फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो डेरिवेटिव्स का सिंबल है d बाई डी एक्स, ये सिंबल है डेरिवेटिव्स का, डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, ऑफ y, तो dy बाई डी एक्स, इसको हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव, ठीक है। वैसे ही इंटीग्रेशन का सिंबल होता है इंटीग्रेशन dx, ये सिंबल है ऑफ व्हाट, ऑफ द फंक्शन। समझ में आपको? तो या y लिख दीजिए, है कि नहीं, आप एफ ऑफ एक्स मतलब y तो है ना, यहां y लिख सकते हैं इफ यू वांट, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx, तो ये जो पॉइंट है ये ऐसा है, ओके। तो y dx एफ ऑफ dx, तो आपको समझ में आना चाहिए, डेरिवेटिव का सिंबल है d बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन का सिंबल है इंटीग्रेशन, ये dx और ये फंक्शन, तो किस फंक्शन का इंटीग्रेशन वो यहां डाला जाता है, ओके। तो सिंबल क्या है, सिंबल ये सिंबल है, तो ये इंटीग्रेशन का सिंबल है, इंटीग्रेशन ऑफ सम फंक्शन, राइट, तो वो फंक्शन होगा इधर एफ ऑफ एक्स, ठीक है। समझ में आप लोगों को? तो यहां तक इसको नोट डाउन करिए आप, राइट, ये हो गया इसका रिप्रेजेंटेशन इंटीग्रेशन का। और इसको एंटी डेरिवेटिव्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला आप देखोगे, तो जो इधर साइन का कॉस होता है, उधर कॉस का वो साइन होता है, तो इधर जो फॉर्मूला है थोड़ा रिवर्स है, ठीक है, तो हम लोग उस पर आता है, तो इसको आप लिख लीजिए, ओके ओके। तो अब हम लोग, ये था इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस कि ये जो इंटीग्रेशन है ये बेसिकली हम लोग एरिया अंडर द कर्व फाइंड करने में काम आएगा। तो फिजिक्स में इसका बहुत यूज होता है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस में हम लोग को जो है ग्राफ दिया रहेगा, और उस ग्राफ में जो है हम लोग बेसिकली एरिया अंडर द कर्व जब फाइंड करेंगे तो हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा, तो वो मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू भी समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए दिखाता हूं मैं आपको। तो जैसा देखिए, मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है ds बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम का कोई ग्राफ है, उसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, यानी उसको आप अगर उसका टेंजेंट निकालोगे, उसका राइट, किसी भी पॉइंट पे, किसी गिवन टाइम पे आपने टेंजेंट निकाला, ये थीटा मिला आपको, तो इस टाइम पे जो ये स्लोप आएगा ds बाई डी टी, इसको मैं t1 कह देता हूँ, एट t इक्वल टू t1, ये जो स्लोप आएगा ये हमको क्या देगा, ये हमको उस टाइम पे वेलोसिटी देगा, यानी स्लोप ऑफ दिस ग्राफ विल गिव अस वेलोसिटी, ये हमने पढ़ा था, राइट, डेरिवेटिव्स में। अब इसी में आप देख सकते हो कि अगर आप इस dt को इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा v dt और ये हो जाएगा ds, ठीक है, मतलब यहां से मिल जाएगा ds इज इक्वल टू v dt। अगर आपने इसको इंटीग्रेट किया तो ये आपको दे देगा डिस्प्लेसमेंट, ये आपको क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा, यानी s देगा। तो कैसे मिलेगा s, इंटीग्रेशन ऑफ v dt, इंटीग्रेशन ऑफ v dt। तो आपका सवाल है सर ये क्या है इंटीग्रेशन ऑफ v dt, वो मैं आपको समझाता हूं, तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह से अपने पास इंटीग्रेशन y dx क्या होता है, इंटीग्रेशन जो y dx क्या होता है, वो होता है एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ, वो क्या होता है, एरिया अंडर वाई एक्स ग्राफ होता है, राइट, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। तो इंटीग्रेशन वी डी टी क्या है, तो इंटीग्रेशन वी डी टी होगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर वैसे ही कहीं पे आपको दिख गया ए डी टी, तो वो क्या होगा,
वो होगा एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो इस तरह से, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम लोग वीडीटी की बात कर रहे हैं, तो चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो ये है एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो बेसिकली आप देखो, ये जो एक्सप्रेशन था यहाँ पे, ये था v इक्वल टू डी एस बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमारे इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ये था कि अगर अपने पास कोई एस टी ग्राफ है, उस एस टी ग्राफ में अगर अपने को कहीं वेलोसिटी फाइंड करना है, कहीं भी किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी फाइंड करना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें उस पॉइंट ऑफ टाइम पे सिर्फ एक टैंजेंट ड्रॉ करना होगा। क्या करना होगा, एक टैंजेंट ड्रॉ करना होगा। उस टैंजेंट का हमें स्लोप फाइंड करना होगा उस टाइम पे, t इक्वल टू t1 पे। तो वो जो ds बाई डी टी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट, एट t इक्वल टू t1 है, वो tan थीटा के बराबर वो v1 होगा। मतलब हम एस टी ग्राफ से v निकाल सकते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। तो अब इसी इक्वेशन को आप मॉडिफाई करोगे तो ये ds क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा v इंटू डी टी, v इंटू डी टी, ठीक है। आप इसको मॉडिफाई किया थोड़ा सा। अब ये v dt अगर आपने दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया, मतलब इंटीग्रेशन कर रहे हैं आप, ठीक है, तो ये क्या देगा, ये हमें देगा एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट देगा। समझ में आ रहा है आपको? तो एसटी ग्राफ से आपने वेलोसिटी निकाला, कैसे, डिफरेंशिएट करके। और वीटी ग्राफ से आपने डिस्प्लेसमेंट निकाला, कैसे, इंटीग्रेट करके, ठीक है। ओके, तो अब आप ये समझिए कि अगर आपने डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिस्प्लेसमेंट, तो पहले ये बात समझ लीजिए, फिर मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा। ये लिख लीजिए आप, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये क्या देगा अपने को, ये हमको देगा डिस्प्लेसमेंट। जिस तरह से स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, यहाँ पे क्या है, स्लोप ऑफ एसटी ग्राफ, ये क्या दे रहा है हमको, ये हमको दे रहा है वेलोसिटी। वैसे एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर, ये हमको ये दे रहा है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमको डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है। तो इस तरह से फिजिक्स में इसका यूज है काफी, जो हम लोग आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। मैं आपको जस्ट इसका कंक्लूजन समझाता हूँ। ये आपने लिख लिया होगा, ठीक है, पॉज करिए, लिख लीजिए। ओके, तो अब मैं आपको ये एग्जांपल फिर से एक बार शॉर्ट में समझाता हूँ कि कंक्लूजन क्या है इसका। देखिए, कंक्लूजन ये है कि डिफरेंशिएशन और एंटी डेरिवेटिव्स यानी इंटीग्रेशन, दोनों का जो है बहुत यूज है फिजिक्स में। इनका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस है फिजिक्स में, तो वो हमें समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जब हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, राइट, तो जैसे यहाँ पे अपने पास कोई फंक्शन है कि s डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, जैसे इसका ग्राफ बनता है y वर्सेस x का, वैसे इसका ग्राफ बनेगा s वर्सेस t का, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको अगर आप डिफरेंशिएट करोगे, इसको अगर क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे, राइट, ds बाई डी टी करोगे, तो ये आपको देगा वेलोसिटी। ये क्या देगा, वेलोसिटी देगा, ठीक है। समझ में है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई वीटी ग्राफ है, कोई क्या है, वीटी ग्राफ, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, डेरिवेटिव, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को आपने डिफरेंशिएट किया तो आपको ये मिल गया। अब आपके पास दूसरा फंक्शन है, मान लो आपके पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ये दिया गया आपको, यानी आपके पास इस तरह से है, ये v और ये t ग्राफ है, कोई ग्राफ है वीटी ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे। तो कोई ये वीटी ग्राफ है आपके पास, तो ये दूसरा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो अभी वेलोसिटी क्या होता है, आपको पता है कि वेलोसिटी ds बाई डी टी होता है। तो वेलोसिटी यहाँ पे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। ओके, तो यहां से इसको आप लिख दोगे क्या, वेलोसिटी को आप लिख दोगे ds बाई डी टी, राइट, ds बाई डी टी इज इक्वल टू v, है ना। वेलोसिटी इज ds बाई डी टी इज इक्वल टू v इज इक्वल टू एफ ऑफ टी। समझ में, ठीक है। तो अब ये वही एक्सप्रेशन है, बट इसी एक्सप्रेशन में हमारा ये ग्राफ है, तो इस ग्राफ में हम चाहे तो वी कैन फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट t1 और t2 के बीच में, कैसे, एरिया अंडर दिस कर्व फाइंड करके। कैसे पता, तो ये एक्सप्रेशन है, ये वैलिड एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे v इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड v इज ds बाई डी टी, ठीक है। तो ये dt को हम उधर ले जाएंगे, तो यहां से ये हो जाएगा ds इज इक्वल टू v dt। हो गया ये एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन कैसा है, ये एक्सप्रेशन वैसा ही है, एरिया इज इक्वल टू y dx, एरिया इज इक्वल टू y dx। ये v है, ये y है, ये dt है, ये dx है, ठीक है। तो हम अगर दोनों का इंटीग्रेशन कर ले, जैसे इसका इंटीग्रेशन करते हैं x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा एरिया अंडर द कर्व y वर्सेस x फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b।
अगर हम इसको इंटीग्रेट कर ले, t1 से लेकर t2 तक इंटीग्रेट करें, तो ये हमें क्या देगा, ये हमें देगा डिस्प्लेसमेंट, ये हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट दे देगा, a से b तक का, तो मैं उसको a भी बोलता हूँ, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ठीक है, समझ में आपको, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द इंटरवल t1 एंड t2 में पार्टिकल का कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमें यहाँ से मिल जाएगा इंटीग्रेशन v dt से। तो ये है इंटर पर्पस, तो एरिया अंडर द कर्व। इस तरह से हमें बहुत सारे एग्जांपल्स है फिजिक्स में जहाँ पे इंटीग्रेशन काम आएगा। ठीक है, तो इसका रिवर्स प्रोसेस। ठीक है, इसको s इज इक्वल टू एफ ऑफ टी को हमने डिफरेंशिएट किया राइट, उसका जो फंक्शन दिया है वहां से स्लोप वगैरह निकाला, ds बाई डी टी इक्वल टू वी इक्वल टू tan थीटा, ये सब किया हमने, तो हमें वहां से वेलोसिटी मिल गया। ठीक है, और वही अगर हमारे पास अगर ये चीज दिया हुआ है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है राइट, तो हम लोग वहां से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। वहां से क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, इस तरह से, समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे आप d बाई डी टी, तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। ठीक है, आपने इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या मिला आपको, वेलोसिटी। और वेलोसिटी को आप इंटीग्रेट करोगे, क्या करोगे, इंटीग्रेट, तो आपको डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। समझ में, डिस्प्लेसमेंट को इंटीग्रेट करोगे तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। राइट, समझ में आया। तो ये इस तरह से, इसलिए इसको डेरिवेटिव और इसको एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। तो ये पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि हमें कुछ फॉर्मूले हैं जो वो याद रखने, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ऑलराइट, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, और कुछ बेसिक फॉर्मूले जो हमें याद रखने हैं राइट, और हमें कुछ क्वेश्चंस करने जिसमें कुछ मैथमेटिकल सब्स्टिट्यूशंस यूज होता है। ठीक है, बस उतना ही, उतना फिजिक्स के लिए बहुत है। एक्चुअली इंटीग्रेशन जो है वो 2-2.5 महीना पढ़ाया जाता है मैथमेटिक्स में, लेकिन हम लोग के यहाँ बस जो बेसिक चीज़ है वो जाननी है और फिर फिजिक्स में उसको यूज करना है। ठीक है, ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले है। ठीक है, तो वो जो है इम्पोर्टेंट फॉर्मूले वो हम लोग याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है कि साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन x का डेरिवेटिव होता है cos x, तो cos x का इंटीग्रेशन होगा sin x, तो cos x जो है इसका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन का सिंबल ये है, ये साइन और dx, ये होगा sin x, ये हो गया पहला फॉर्मूला। ठीक है, ओके, फिर वैसे ही आपको पता है कि डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या आता है, आप लोगों ने याद कर लिया होगा, वो माइनस साइन x आता है। ठीक है, तो माइनस को इधर ले लो, तो साइन x का डेरिवेटिव आएगा माइनस cos x, तो साइन x का डेरिवेटिव ये आएगा माइनस cos x, ये दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, फिर आपको पता है, आपको याद है कि डेरिवेटिव ऑफ tan x क्या था, tan x था sec square x। ऑलराइट, sec square x, तो फिर इंटीग्रेशन ऑफ sec square x विद रिस्पेक्ट टू dx, sec square x विद रिस्पेक्ट, तो ये dx, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan x, इस तरह से एंटी डेरिवेटिव। ओके, तो वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ sec x क्या था, ये था sec x tan x, sec x tan x। ओके, तो आपको याद रखना है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x क्या होगा, sec x tan x क्या होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec x tan x होगा sec x। ओके, फिर वैसे ही डेरिवेटिव ऑफ cosec x क्या है, वो है माइनस cosec x cot x इंटू cot x, तो माइनस इधर ले लो, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec x cot x ये क्या होगा, cosec x cot x हो जाएगा माइनस cosec x। ठीक है, तो आपको इस तरह याद रख लेना है, ये सब बेसिक चीज है। फिर अच्छा, ये x यहाँ पे हमने x लिया, फिर डेरिवेटिव ऑफ cot x क्या है, cot x होता है माइनस cosec square x, तो माइनस को इधर ले लो, तो माइनस cot x हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec square x क्या है, हो जाएगा माइनस cot x। ठीक है, समझ में आपको। ओके,
अब यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन जो है बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। ओके, तो इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। ओके, ठीक है, और इसको याद कर लीजिए। ओके, फिर एक और जो फॉर्मूला है जो हमको याद रखना है वो है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू n, ये फंक्शन है dx। ओके, इसका x रेज टू n का इंटीग्रेशन, तो ये होता है x रेज टू n प्लस वन बाई n प्लस वन, इसको याद करना है। ठीक है, फिर आपको पता है कि e रेज टू x का डेरिवेटिव e रेज टू x होता है, तो उसका इंटीग्रेशन भी वही होगा, e रेज टू x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, e रेज टू x। ठीक है, आपको पता है कि ln x का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है 1 बाई एक्स। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स क्या होगा, 1 बाई एक्स डी एक्स, या फिर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स, ये क्या होगा, ये होगा ln x। समझ में आया आपको, तो इस तरह से ln x, एक्चुअली यहाँ पे ये मॉड रहता है। ठीक है, ln ऑफ x, लेकिन हम लोग ln x लिख लेते हैं। ठीक है, तो ln x, तो ये जो है पहले के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले बताए मैंने और ये बताया, ये आपको सब याद होने चाहिए। ठीक है, तो इसका फटाफट याद कर लीजिए। अब इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, तो जो इंटीग्रेशन है वो दो टाइप का होता है ना, इंटीग्रेशन जो है वो दो टाइप का होता है, एक होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, दूसरा होता है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जिसमें लिमिट्स डिफाइंड होता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, लिमिट्स आर डिफाइंड, मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट ये डिफाइंड है। ठीक है, जैसे x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी तक इंटीग्रेट करना है। ओके, तो ये हो गया लोअर लिमिट और वो हो गया अपर लिमिट। तो जो लिमिट है वो अगर डिफाइंड है तो उसको हम लोग कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, अगर लिमिट नहीं डिफाइंड है तो उसको हम लोग कहते हैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, इसका इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो इंटीग्रेशन y हो जाएगा यानी फंक्शन इंटू डी एक्स हो गया y डी एक्स, और इसमें आप लिमिट डालोगे x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी। तो ये जो चीज आप देख रहे हो, राइट, ये जो चीज आप देख रहे हो ये हो गया अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन, मतलब इसमें लिमिट्स डिफाइंड है, x इज इक्वल टू ए से x इज इक्वल टू बी। ठीक है, पर अगर यही चीज या लिमिट्स नहीं डिफाइंड है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, तो फंक्शन क्या है y या f ऑफ x लिख दो। ठीक है, जो मन करे, क्योंकि y और f ऑफ x एक ही है। अगर इसमें इंटीग्रेशन में लिमिट्स नहीं डिफाइंड है तो इसको इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहते हैं। तो इसका जो आंसर आता है, जो भी इसका आंसर आएगा इंटीग्रेशन, उसके साथ एक हमेशा हम लोग प्लस सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्लस सी, सी इज अ कांस्टेंट। ठीक है, दिस कांस्टेंट विल डिपेंड कि आप लिमिट्स क्या चूज करते हो। ओके, उसके हिसाब से वो कांस्टेंट अलग अलग आएगा। ऑलराइट, तो मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ यहाँ पे कि तो जो भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन रहेगा, अगर लिमिट्स नहीं दिए रहेंगे क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, आप इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर लोगे, बाद में प्लस सी लगा दोगे। ठीक है, अगर लिमिट दिया रहेगा तो फिर प्लस सी नहीं लगाओगे, फिर लिमिट दिया रहेगा तो आप लिमिट डालोगे और उसको सॉल्व करोगे। तो लिमिट्स कैसे डालना है वो सब हम बताएंगे अगले स्टेप में। ठीक है, तो पहले ये समझ लीजिए कि दो तरह के इंटीग्रेशन होते हैं, एक डेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, ओके, चलिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग ये जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है इसको समझ लेंगे, राइट, इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेंगे। ओके, कैसे ये लिमिट्स हम लोग पुट करते हैं, और उसके बाद हम लोग इनडेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, राइट, वैसा प्लस सी क्यों लगाते हैं, राइट, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए अभी हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के बारे में। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसमें लिमिट्स कैसे डालते हैं। ओके, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, तो पहले कंसेप्ट समझ लीजिए आप। कंसेप्ट ऐसा है कि आपको y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स दिया है, ठीक है, और आपको लिमिट्स दिए है x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या दिया है, इंटीग्रेट
द गिवन फंक्शन, इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन विद इन द गिवन लिमिट्स, विद इन द गिवन लिमिट्स। ये क्वेश्चन दिया है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये कोई भी एक फंक्शन होगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, उसको इंटीग्रेट करना है x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी लेता हूँ साथ में। तो एग्जांपल मानिए ऐसा है कि आपको y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया है और लिमिट्स दिए है आपको x इज इक्वल टू 2 से x इज इक्वल टू 4 तक, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा एग्जांपल। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b। ये तरीका है, ऐसा आप लिखोगे, ठीक है। ये गिवन फंक्शन है y और ये सिंबल है इंटीग्रेशन और डी, इंटीग्रेशन का साइन, ये s का साइन है समेशन यानी इंटीग्रेशन का साइन, और dx ये हो गया आपका सिंबल का पार्ट, ठीक है, ये तो सिंबल हो गया। और अंदर आप क्या लिखोगे, फंक्शन लिखोगे यानी y लिखोगे, ओके, ठीक है। अब क्या, अब आप यहाँ पे लिख दोगे y की जगह पे f ऑफ x, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx फ्रॉम x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे करना है। चलो यहाँ पे देखते हैं। तो y dx लिखो, तो आपने लिख दिया इंटीग्रेशन इज इक्वल टू y dx फ्रॉम x इज इक्वल टू लोअर लिमिट से x इज इक्वल टू 4 यानी अपर लिमिट, हो गया, ठीक है, सेम टू सेम, ओके, टिट्टो। अच्छा, अब क्या करना है, अब y की जगह फंक्शन डाल दो, तो वो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह लिख दोगे x स्क्वायर dx फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये जो f ऑफ x dx है, इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो एक नया फंक्शन आएगा, जैसे साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस x, कॉस का इंटीग्रेशन साइन x, तो वैसे f ऑफ x का इंटीग्रेशन gx आएगा, तो वो हो जाएगा। तो ये जो f ऑफ x का इंटीग्रेशन है यानी इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx, ये इंटीग्रेशन आपको देगा कुछ तो नया फंक्शन देगा gx, राइट। जैसे हम लोग किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं नया फंक्शन मिलता है, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं जैसे x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं 2x मिलता है, नया फंक्शन। साइन x को डिफरेंशिएट करते हैं cos x मिलता है, नया फंक्शन। तो वैसे हम लोग किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें नया फंक्शन मिलेगा g ऑफ x, तो ये पूरा हटा के हो जाएगा g ऑफ x और लिमिट्स हो जाएंगे x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b, ठीक है। वैसे इस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, ठीक है, फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 4। आप लोग सर ऐसा कैसे हो गया, अभी मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था x रेज टू n का, x रेज टू n है अगर फंक्शन x रेज टू n, तो ये x रेज टू 2 है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो x रेज टू 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, मतलब ये हो गया x क्यूब बाई 3 फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 4। अब आपको लास्ट स्टेप पे आ गया। लास्ट स्टेप क्या है, लास्ट स्टेप ये कि अब आपको इसमें लिमिट्स पुट करने हैं। क्या पुट करने हैं, लिमिट्स। तो सबसे पहले जो अपर लिमिट है वो डालना है, तो अपर लिमिट आप डालोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा g ऑफ b, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, g ऑफ b, x की जगह b डाल दोगे आप, ये जो x है उसकी जगह b डाल दोगे, माइनस फिर लोअर लिमिट डाल दोगे यानी g ऑफ a, तो ये है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन gb माइनस ga, तो एक फाइनाइट आंसर आएगा। चलो अब इसमें डाल दो, तो इसमें आप पहले ये अपर लिमिट डाल दोगे x इज इक्वल टू 4, तो 4 का क्यूब हो जाएगा 4 क्यूब बाई 3, 4 क्यूब बाई 3, और ये बीच में एक माइनस साइन डालना है, कंपलसरी आपको माइनस डालना ही, तो माइनस डाल दिया आपने, फिर आपने x की जगह 2 डाल दिया, तो वो हो गया 2 क्यूब बाई 3, तो कुल मिला के ये हो गया 64 बाई 3 माइनस 2 टू द 4 टू द 8, 8 बाई 3, तो कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 64 माइनस 8 56, तो 56 बाई 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 56 बाई 3। बस इस तरह से करना है। तो मैं फिर से समझाता हूं आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या है और कैसे करना है। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जो होगा उसमें आपको बेसिकली लिमिट्स दिए होंगे, ठीक है, एक जैसे x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक, और एक फंक्शन दिया रहेगा। क्वेश्चन कैसा रहेगा, इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन विद इन द गिवन लिमिट्स, ऐसा सवाल रहेगा। तो मैंने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एग्जांपल भी लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। जैसे ये जो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b तक, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन क्या है, वो है ऐसा और dx, और यहां पे आप फंक्शन डालते हो,
ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ कौन सा फंक्शन है, y dx, y की जगह f ऑफ x dx, f ऑफ x dx जो है इसका इंटीग्रेशन कुछ एक नया फंक्शन देगा gx, तो वो आपने पूरा हटा के लिख दिया gx और लिमिट्स को लिख दिया यहाँ पे, पहले इस साइड लिखा था अब इधर लिख दिया, पहले लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था आपने साइन के ऊपर नीचे, अब वो साइन तो चला गया क्योंकि आपने इंटीग्रेशन कर दिया है। इंटीग्रेशन करने के बाद अब वो साइन नहीं रहेगा, अब सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट्स रहेंगे, तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लिख दिया आपने और f ऑफ x नहीं रहेगा, g ऑफ x रहेगा क्योंकि आपने इंटीग्रेट कर दिया है। इंटीग्रेट कर दिया है तो एक नया फंक्शन मिल गया है, अब f ऑफ x नहीं रहेगा, अब g ऑफ x रहेगा, तो आपने g ऑफ x लिख दिया और फिर लिमिट्स अभी तक आपने डाले नहीं है इसलिए लिमिट्स बरकरार हैं, मतलब लिमिट्स आपको वहां लिखने पड़ेंगे। अब LHS में नहीं RHS में लिखो, स्क्वायर ब्रैकेट के साइड में x इज इक्वल टू a से x इज इक्वल टू b। इसके बाद आपको लिमिट्स डालने हैं, ये लास्ट स्टेप है, पुट द लिमिट्स। तो पुट द लिमिट्स कैसे करोगे, तो ये जो g ऑफ b है नया फंक्शन है, तो इसमें x की जगह पहले b डालो, तो पहले अपर लिमिट डालो पहले, ठीक है, तो वो हो गया g ऑफ b, g ऑफ b, g ऑफ x, x की जगह b, g ऑफ b, ठीक है। और उसके बाद एक माइनस साइन कंपलसरी डालना है, ठीक है, और फिर आपको डालना है लोअर लिमिट g ऑफ a, इसको हम लोग कहते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने एक एग्जांपल लिया है, यहाँ एग्जांपल देखो, तो यहाँ पे हमने ये फंक्शन लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन हुआ इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ठीक है, फ्रॉम x इज इक्वल टू 2 टू x इज इक्वल टू 4, ऑलराइट, और y की जगह पे हमने डाल दिया एक्स स्क्वायर क्योंकि वही करना था, y की जगह f ऑफ x डालना था, डाल दिया हमने x स्क्वायर dx, एक्स स्क्वायर यानी x रेज टू n, तो मैंने आपको बताया था कि x रेज टू n का इंटीग्रेशन होता है x रेज टू n प्लस 1 बाय n प्लस 1, ये फॉर्मूला हमें याद रख लेना है, ठीक है। तो जो आप में से जो लोग मैथ्स में है, इंजीनियरिंग में, उनको डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया, ठीक है, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन बेसिकली फिजिक्स में हमें वो कहानी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ फॉर्मूला चाहिए, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं फॉर्मूले की, ऑलराइट। तो यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे x रेज टू n का फॉर्मूला x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1 है, ये होगा x रेज टू 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, यानी x रेज टू 3 बाई 3, तो वो आ गया x रेज टू 3 बाई 3, और लिमिट जो है हमने साइड में लिख देना है, राइट साइड में। तो लिमिट्स पहले हमने लेफ्ट साइड में लिखा था, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है इसके ऊपर नीचे लिखा था, लेकिन जैसे इसको इंटीग्रेट कर दिया f ऑफ x का g ऑफ x हो गया, x स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 हो गया, f ऑफ x का g ऑफ x हो गया। अब हमने इंटीग्रेशन लेफ्ट साइड में नहीं लिखना है, राइट साइड में लिखना है, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट लगा के राइट साइड में ऊपर नीचे लिखना है, लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट यानी x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 तक हमें इंटीग्रेट करना है नीचे और ऊपर। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें पुट द लिमिट्स करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें पुट द अपर लिमिट यानी x इज इक्वल टू 4 डालना है, तो ये हो जाएगा 4 क्यूब बाई 3, फिर हमें लोअर लिमिट डालना है, फिर ये हो जाएगा x की जगह पे, ठीक है, x जागी आपल्याला पहिल्यांदा अपर लिमिट टाकायचं आहे, x जागी, हा हे लक्षात ठेवा तुम्ही, x जागी टाकायचं आहे आपल्याला अपर लिमिट, तर अपर लिमिट काय आहे x इज इक्वल टू 4, तर x जागी टाकायचं आहे आपल्याला 4, तर काय येणार, तर x क्यूबच्या जागी येणार 4 क्यूब, तर 4 क्यूब बाई 3, आणि नंतर एक मायनस साइन टाकावं लागतं आपल्याला, कंपल्सरी आहे मायनस साइन टाकायचं, तर तिकडे मायनस साइन टाकून पुढे काय करायचंय, पुढे आपल्याला लोअर लिमिट टाकायचं आहे एक्सच्या जागी, तर एक्सच्या जागी 2 टाकून द्या आणि तर 2 क्यूब बाय 3 येणार, हा, तर 4 क्यूब बाय 3 2 क्यूब बाय 3 याला मी पुढे सॉल्व्ह केलंय, 4 क्यूब म्हणजे 64 बाय 3 माइनस 8 बाय 3 म्हणजे 56 बाय 3, ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। दिस इज डेफिनेट इंटीग्रेशन, सो लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑन दिस, ओके ओके। तो इसको पहले नोट डाउन कर लो आप, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, मैंने यहाँ पे लिखा है इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू gx, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, यहाँ पे पॉज करो वीडियो, इसको नोट डाउन कर लो, ओके, ठीक है। तो अब बात है कि लेट अस टेक सम मोर एग्जांपल्स ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, ओके। तो जैसे मान लीजिए अभी एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि यहाँ पे आपको दिया गया है y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5, ठीक है, ओके, इसको इंटीग्रेट करना है x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 तक, ओके, यहां तक इंटीग्रेट करना है, ओके। तो लेट अस स्टार्ट, वेरी सिंपल, तो इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ओके, यानी इंटीग्रेशन ऑफ y की जगह पे x रेज टू 5 dx, यानी ये हो जाएगा, और लिमिट्स यहाँ रख दीजिए, x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 तक, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x रेज टू 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1, ये हो जाएगा फ्रॉम x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 तक। तो अब क्या है, देखा आपने f ऑफ x का g ऑफ x आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा x रेज टू 5 प्लस 1 6/6। तो x रेज टू 5 का इंटीग्रेशन है, ठीक है। अगर x रेज टू 5 का डेरिवेटिव निकालना होता तो क्या आता, तो वो आता n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1। ये फॉर्मूला सिखाया था आपको डेरिवेटिव में, तो ये हो जाता 5 इंटू एक्स रेज टू 5 माइनस 1 यानी 5 इंटू एक्स रेज टू 4। ये फॉर्मूला डेरिवेटिव का है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ फॉर्मूला दूसरा है। यहाँ जो फॉर्मूला है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1। यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होता है इंटीग्रेशन में, ठीक है। और ये यूज हो रहा है डेरिवेटिव, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। तो x रेज टू n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 6 बाई n प्लस 1 यानी 6। ये आ गया, ये हो गया g ऑफ x, और लिमिट डालना है आपको x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 तक, ठीक है। तो पहले अपर लिमिट डालिए यानी 2 डालिए, x चा जागी 2 टाकायचं आहे आपल्याला, तर x चा जागी 2 टाकून द्या बघा, तर हे काय येणार, तर येणार 2 रेज टू 6 बाय 6, कळलं का। तर त्यानंतर माइनस साइन कंपल्सरी टाकायचं आहे, तर माइनस साइन टाकून द्या, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, x फिर x की जगह पे 1 डालना है, तो 1 रेज टू 6 बाय 6। तो 2 रेज टू 6 कितना होता है, वो होता है 64, तो 64 बाई 6, और ये हो गया 1 बाई 6 यानी 63 बाई 6, ठीक है। इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं आप, 321 जा 3 2 जा 6, 21/2 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो एक बार फिर से देखो हम लोगों ने क्या किया। ये फंक्शन था y इज इक्वल टू एक्स रेज टू 5। इस फंक्शन में हम लोगों ने हमको इंटीग्रेट करना था 1 से लेकर 2 तक, हमने लिख दिया y dx। इंटीग्रेशन करना था y की जगह x रेज टू 5 डाल दिया dx, ये लिमिट्स है। इसका फार्मूला ये होता है x रेज टू n प्लस 1 बाई n प्लस 1, वो यूज कर दिया x रेज टू 5 प्लस 1 बाई 5 प्लस 1, वो हो गया x रेज टू 6 बाई 6। उसका लिमिट डालना है, लिमिट्स को यहाँ से उठाकर राइट साइड में लिख दिया, स्क्वायर ब्रैकेट के राइट साइड में x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 तक। तो ये हो गया 2 रेज टू 6 बाई 6 माइनस 1 रेज टू 6 बाई 6, 64 बाई 6 माइनस 1 बाई 6, ये आ गया इसका। इसको बोलते हैं हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन। समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। तो हम लोग और एग्जाम्पल्स लेंगे अगले लेक्चर में, तो डेफिनेट इंटीग्रेशंस के कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, और फिर जो अपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है उसको समझने की कोशिश करेंगे, और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इस लेक्चर में इतना, पहले आप लोग इसको अंडरस्टैंड करिए, और इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में वो सी क्यों यूज होता है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन कर लेंगे, एंड देन वील अंडरस्टैंड मोर अबाउट इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, बाय।